Hello guys, good morning. Welcome back to my channel on UK Republic Academy. This is Ubash and I welcome to all of you guys on this channel. So guys, today it is our third lecture on goodwill. So today we will discuss some important concept of goodwill. So let's begin. So this is our institute name. I think you all know it very well. Republic Academy. We are a family of Republic Academy, and this session is by Ubash sir. I think you all know me very well, so I don't have need to tell you my name, I think. So this is the lecture of accountancy 12. So actually I put all these things like accountancy 11 or accountancy 12, so that students who are in accountancy for class 11, they won't confuse that which class they have to attend. So ये सारी चीज़ें ये अकाउंटेंसी 11 12 में इसलिए पुट कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि आपको 11th वाले अपनी 11 की क्लासेस को अटेंड कर सकें और 12th वाले अपनी 12th की क्लासेस को अटेंड कर सकें, इसलिए मैं ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देता हूँ ये सारी चीज़ें। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट ऑलरेडी। ओके, चलिए आज शुरू करते हैं। आज हमारा गुडविल का पार्ट 3 हम शुरू करने जा रहे हैं, गुडविल पार्ट 3, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए गाइस, अच्छा आज की क्लास को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। आई नो यू ऑल नो इट वेरी वेल व्हाट आई एम गोइंग टू से, बट स्टिल आई वुड से that guys, any one of you, if any one of you want to join us, you can do it by online, offline, or if you want to purchase the recorded lecture of accountancy 12, then you can contact us on this number. It is our contact number, which is I am writing it again so that if it is not visible you can note it again: 9151369837. It is our helpline number. If you want to join us through online, offline, or want to purchase our recorded lecture, then you can call us on this helpline number, and even you can WhatsApp us on this number your queries, and even you can write your queries on this email ID to us. So these are the ways by which you can connect to us. So uh, let's begin the session. थोड़ा सा उन बच्चों के लिए भी बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हमसे हमें हमें ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, या हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर को परचेस करना चाहते हैं, वो हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, या हमारे इस एड तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर। सो लेट मी रिमूव फर्स्ट ऑफ ऑल these inks. Okay, so let's begin. So guys, okay, let me change the color of the pen. Okay, okay, चलिए। सो गाइस, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा एग्जाम में। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, दे डिसाइडेड टू टेक D इन द पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 फॉर 1/5 शेयर फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, सो गाइस देखिए ये सारा काम, ये आपका ये डाटा जो है आपके क्वेश्चन में बेकार का, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसका इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। आपका देखिए क्वेश्चन यहाँ से, आई एम सॉरी गाइस, I think there might be some noise in background. So as I've told in all the videos that I am shooting all this I'm recording all these video lectures in my locality, so there might be some noise from my neighborhood. So for that, if you have, yeah, if you are getting this noise, so just ignore it. Yeah, ignore this noise, and just you can just continue your learning, and because we all are here to learn something very important which would definitely help us. So that definitely if you are getting any kind of noise, background noise, just ignore it. चलिए, तो देखिए आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ से शुरू होता है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर। 100%, गुडविल जो है 100% पे वैल्यूड की जाती है, किसके? प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट विच एवर इज़ हायर। देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, प्रीवियस थ्री और 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। एक बार हम निकालेंगे 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट, एक बार निकालेंगे 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट। उन दोनों में से देखिए उसने बोला है कि विच एवर इज़ हायर, जो भी हायर है उस एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करते हुए हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो, ये पॉइंट क्लियर होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं अब। आगे कह रहा है द एग्रीड एनुअल प्रॉफिट फॉर द गुडविल पर्पज ऑफ द पास्ट 4 ईयर, व इस तरह से देखिए। तो देखिए लास्ट 4 ईयर के आपके प्रॉफिट इस तरह से दे रखे हैं। ये 17 का प्रॉफिट है,
ये 17 का है, ये 18 का है, ये 19 का, ये 20 का है। देखिए गाइस, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि ये है कि देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर दो बार एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एक बार तो हमें 3 ईयर का कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, और एक बार हम 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जब 4 ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो हम ये सारे ईयर का प्रॉफिट एक बार में ले लेंगे। लेकिन जब 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे ये वाला, तो हम कौन से 3 ईयर का प्रॉफिट उठाएंगे? स्टार्टिंग से 3 ईयर उठाएं, स्टार्टिंग से 3 ईयर उठाएं, या लास्ट से, यानी कि लास्ट के 3 ईयर उठाएं। तो ये यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में कभी भी ऐसी कंडीशन में हमें जब निकालना हो तो हम लास्ट से उठाते हैं। तो देखो लास्ट में यानी कि हमारे पास प्रॉफिट कब तक का दिया हुआ है, 2020 तक का प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है। तो हम 20 से उल्टे चलेंगे, ठीक है, यानी कि 20 से लास्ट 3 ईयर उठाएंगे अब, ठीक है। तो 20 का प्रॉफिट उठाएंगे हम, 20 का उठाएंगे, 19 का उठाएंगे और 18 का उठाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम केवल 3 ईयर का प्रॉफिट उठाएंगे, जब हम केवल 3 ईयर का प्रॉफिट उठाएंगे तो हम सिर्फ तो हम जो है सिर्फ लास्ट ये लास्ट वाला 3 ईयर उठाएंगे, ये और इन 3 ईयर का प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। और जब 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो फिर ये चारों ले लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीके से क्लियर होगी। चलिए अब आते हैं कैलकुलेट करने के लिए गुडविल। देखिए गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चूँकि निकालना है ना, चूँकि हम एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया है। क्या होता है फार्मूला? ये जल्दी से ध्यान करो, ये है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। यानी कि जितना भी प्रॉफिट आपका दे रखा है उन सबका सम कर लो, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनसे डिवाइड कर दो। चलिए तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट ही अपना निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट को देखिए, हाँ यहाँ पर भी देखिए दो कंडीशन है एवरेज प्रॉफिट निकालने की, दो कंडीशन है। एक बार हम निकालेंगे 3 ईयर का, एक बार हम 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और दूसरी बार में हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर का। तो चलिए पहले 3 ईयर वाला निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 ईयर का प्रॉफिट मैंने कौन सा उठाया है, 288, 181 800 और 187 200। मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या आपने उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लिया होगा। अभी तक आपने अगर ये नहीं किया है तो एक बार जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करके उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, या उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लो, जिससे कि आपको बार बार आपके सामने क्वेश्चन हो जब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन में देखिए लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने देखिए ये 2020, 19 और 18 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर उठाया है। तो इन तीनों साल का जब एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे तो इन 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 2,19,000। आई होप आप लोग इसको कैलकुलेट करके एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं अपने आप, ठीक है। तो कैलकुलेट करके जब निकालोगे तो आपका 2,19,000 का एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं बी वाला पॉइंट। बी पॉइंट में क्या है, हमें 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, हमें 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम करेंगे, चलिए सबको एक मिनट क्लियर कर दूँ मैं। चलिए 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लास्ट, तो अब तो सभी ईयर के प्रॉफिट उठा लेंगे, क्योंकि केवल 4 ईयर का तो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे। तो अब चारों साल का यानी कि 4 ईयर्स का सभी ईयर्स का प्रॉफिट उठाकर उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो इस तरह से आपका 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट 2,27,500 का निकल आएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ें यहाँ तक सभी क्लियर होंगी, यहाँ तक सारी चीज़ें। अब गुडविल निकालने के बाद उसने हमसे क्या बोला था, देखो हाँ इस पॉइंट में एक चीज़ देखो, उसने हमसे बोला था हम कौन से एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करेंगे। उसने बोला था कि लास्ट 3 ईयर का निकालना है हमें और 4 ईयर का निकालना है। अब इन दोनों में से उसने बोला था इन दोनों में से जो भी हायर हो, क्वेश्चन में अपने जल्दी से देखो, चलो एक बार मैं दिखा भी रहा हूँ। अच्छा देखो उसने क्या बोला था, उसने बोला था बिच एवर इज़ हायर। ये यहाँ पर उसने बोला है कि बिच एवर इज़ हायर, जो भी ज़्यादा है उसको हम यूज़ करेंगे। तो देखो जल्दी से कौन सा ज़्यादा आया है, 3 ईयर वाला ज़्यादा है या 4 ईयर वाला। तो हम कह सकते हैं ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा नहीं है, ये वाला ज़्यादा है, ठीक है। ये 2,27,000 है, ये 2,19,000 है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, ये वाला जो कि रेड इंक में दे रखा है, ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये वाला हमारा एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा। चलो अब आते हैं सेकंड फार्मूले की ओर। सेकंड फार्मूले में यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल चुका है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फार्मूला मैंने बताया था, गुडविल निकालने का मैंने फार्मूला बताया था एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो कि हमने निकाला है अभी, कैलकुलेट किया है, और इनटू कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, यानी कि जितने साल का हमें निकालना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, उसने यहाँ इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया ही नहीं था। उसने ये बोला था कि गुडविल हमें निकालनी है कैसे। देखो जल्दी से मैं दिखा भी रहा हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि फॉर दिस पर्पज गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड। देखिए गुडविल कितने में वैल्यूड होना है, एट 100% ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट विच एवर इज़ हायर।
यानी कि एवरेज प्रॉफिट के 100% पे, एवरेज प्रॉफिट के 100% पे गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी कि वो आपसे बता रहा है कि पिछले 3 या 4 साल के एवरेज प्रॉफिट में जो भी हायर होगा उसके 100% पे गुडविल कैलकुलेट की जाती है, उसके 100% पे। तो जल्दी से देखो अब हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें एवरेज प्रॉफिट की, यानी कि हमारा एवरेज प्रॉफिट ये था, इसका 100% निकालना है। तो इसका 100% तो भाई यही अमाउंट हो जाएगी ना, यानी कि इस अमाउंट, किसी भी अमाउंट का 100% वही अमाउंट होता है, ठीक है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें, ये सारी बातें हम लोग 6-7 क्लासेस में सीखते हैं मैथ पढ़ते समय। तो यानी कि 2,27,500 का 100% यही हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारी गुडविल निकली है 2,27,500। ओके, चलिए। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बड़ी जल्दी से बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक नया पॉइंट दिया हुआ है जो कि है एबनॉर्मल 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 लॉस एबनॉर्मल 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 लॉस या प्रॉफिट दे रखा हुआ कोई भी, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस या गेन दे रखा हुआ, ठीक है। चलो, नॉर्मल या एबनॉर्मल। चल देखिए, यहाँ पर ये वाली कंडीशन है कि जब व्हेन एबनॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन होगा यहाँ पर, वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। देखो यहाँ पर उसने बोल दिया है कितने ईयर की बेस पे कैलकुलेट करनी है, हमें 3 ईयर परचेज की बेस पर कैलकुलेट करनी है। देखो यहाँ पर उसने क्लियर मेंशन कर दिया है। चलो, ये तो मिल गया हमें। आगे क्या बोला है? ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, यानी कि लास्ट 5 ईयर की एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर देखो उसने एवरेज प्रॉफिट भी बता दिया हमें, यानी कि ये भी बता दिया कि हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। आगे बोल रहा है द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स एंडेड ऑन 31 मार्च वर्क, ठीक है। यानी कि पिछले 5 सालों के प्रॉफिट आपको दे रहा है वो इस तरह से। देखो 16 का प्रॉफिट आपका ये रखा है, 16 का ये है, 18 का ये दे रखा है। और देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को समझो। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। देखिए 18 का ये प्रॉफिट नहीं है, 18 में ये लॉस है। एक चीज़ ध्यान, कभी भी अगर प्रॉफिट में कोई अमाउंट ब्रैकेट के अंदर दी हुई है, ये इस टाइप से ब्रैकेट के अंदर अगर दी हुई है, तो उस अमाउंट को हम लॉस मानते हैं। ये अमाउंट नेगेटिव की होती है। यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव से होता है, ठीक है। यानी कि ब्रैकेट जो है नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 19 में प्रॉफिट जो है माइनस का है, मतलब लॉस हुई है 19 में हमें। 20 में देखो आपको इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब आगे उसने आपसे बोला है क्लियरली कि जो है कैलकुलेट आपको करनी है गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट भी दी हुई है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस वाली कंडीशन में इसको एडजस्टमेंट ही बोला जाता है। देखिए ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देगा वो, यानी कि नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस या गेन वाली कंडीशन में वो आपको ये इस तरह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। अभी तक क्वेश्चन में हमें खाली इतना डेटा दिया हुआ होता था, ये सारा डेटा दिया होता था, लेकिन एबनॉर्मल वाली में ये कंडीशन भी वो दे देगा। तो देखो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है सॉरी, देखिए एक्स्ट्रा कंडीशन ये दे रहा है आपको, कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ 2016-17, ठीक है। 16-17 का जो प्रॉफिट है कह रहा है वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग ₹25,000 ऑफ एबनॉर्मल लॉस। देखो ये मिल गया हमें एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर। ये यहाँ पर वो हमें क्या बोल रहा है? कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि जो 17 का जो प्रॉफिट है, मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है, ये जो है इसमें से हमने एक एबनॉर्मल लॉस चार्ज कर ली है 25,000 की। अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एबनॉर्मल लॉस होती क्या है। देखिए एबनॉर्मल लॉस ऐसी होती है, देखिए लॉस दो तरह की हो सकती है हमारी, एक तो नॉर्मल और एबनॉर्मल। यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों के हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए और आपको ये नोट्स बनाने हैं इस पॉइंट के, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इसमें ये वैल्यू रखता है, बहुत पूछा जाता है ये। एक मिनट इसको हटा लेने दो मुझे ज़रा। चलिए तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर हमें वो। देखिए नॉर्मल, हाँ नॉर्मल लॉस दो तरह की होती है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। देखिए नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल वो होती है जो कि रिलेटेड टू बिजनेस होती है, जो कि रिलेटेड टू बिजनेस होती है, यानी कि ऐसी लॉस जो कि बिजनेस के में किसी वजह से हुई है, तो ऐसी लॉस को हम बिजनेस से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल क्या होती है? देखिए ये गेम करती है। एबनॉर्मल वो होती है जो नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, यानी कि ऐसी लॉस जो कि बिजनेस की वजह से हमें नहीं हुई है, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस,
एक मिनट, लाइंस क्यों आ रही हैं? ठीक है, ऐसी लॉस जो कि बिजनेस से रिलेटेड हमारी नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाएंगी हमारी एबनॉर्मल, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। चलो मैंने बोल तो दिया है, फिलहाल लिख लेना, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। अब देखिए, हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि हम जब अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स में हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एडजस्ट करते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। अगर कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं था लेकिन हमने उसको बिजनेस के प्रॉफिट से चार्ज कर लिया है, तो हम क्या करेंगे उसको, ये हमारी एक गलती होती है, तो उसको सुधार करने के लिए हम क्या करेंगे, उस वो उतना पैसा हमें वापस से बिजनेस में डालना पड़ेगा जो कि हमने निकाला था एबनॉर्मल लॉस के नाम से। आसान भाषा में अच्छा बताऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी भी प्रॉफिट में से, अगर कभी भी अगर कभी भी प्रॉफिट में से आपने कोई भी एबनॉर्मल लॉस चार्ज कर ली है, ठीक है, अगर प्रॉफिट में से कभी भी कोई एबनॉर्मल लॉस चार्ज कर ली है, तो वो हमेशा प्रॉफिट में ऐड कर ली जाती है। इसको अगर फार्मूले से चलो जो समझूँ तो इस तरह से लिख लूँगा। देखो, फार्मूले से अगर समझना चाहो तो इस तरह से लिखोगे। देखो, अगर क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट दिया हो, जैसे कि प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर चार्जिंग चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है एबनॉर्मल लॉस को चार्ज करने के बाद का दिया हुआ है, तो हम हमें वहाँ पर सही प्रॉफिट निकालने के लिए, यानी कि एक्यूरेट प्रॉफिट क्या निकलेगा, एक्यूरेट प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें हम, यानी कि इस प्रॉफिट की अमाउंट में उस एबनॉर्मल लॉस को भी जोड़ देंगे, प्लस एबनॉर्मल लॉस, ये हमारा क्या बन जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा ये क्या, ये हमारा एक्यूरेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है, जिसको हम बिजनेस में यूज़ करेंगे, हमारा एक्यूरेट प्रॉफिट हो जाएगा। एक्यूरेट प्रॉफिट, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मैं भी इसको दोबारा से रीड करके बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग लिख लो। देखिए, एक्यूरेट प्रॉफिट जिसका कि हम बिजनेस में यूज़ करेंगे, इसका होता है, ये इक्वल टू होता है सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें उस लॉस को हम दोबारा से ऐड कर देते हैं जो कि चार्ज की गई है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी भी लॉस बाय फायर अगर चार्ज कर ली गई है प्रॉफिट से, तो इसको हम चार्ज कर देंगे, इसको हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट में, इसको प्रॉफिट में हम ऐड कर देते हैं अपना सही प्रॉफिट निकालने के लिए। आई होप आप सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी, ठीक है। इसमें हाँ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि ये मैथड थोड़ी सी ट्रिकी है और कन्फ्यूजिंग भी है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन आप अगर लेक्चर को एक दो बार रिवाइज़ करोगे, अपने कॉपी में जो नोट्स बनाओगे उसको एक दो बार रिवाइज़ करोगे, तो आई थिंक फिर आपको ये चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। कुछ फिर ये बहुत ईजी लगेगा, इसमें कुछ में है नहीं, अगर एक बार ये क्लियर हो गया ना, माइंड में सेट हो जाएगा, तो फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा समझने के लिए, ठीक है। फिर ये बहुत ईजी लगेगा कि आपको क्या, फिर आप सोचोगे खुद को बाद में सोचोगे कि अरे मैं इसमें अटका हुआ था, इतना ईजी लगेगा फिर आपको ये। बस थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन कोई नहीं है। एक दो बार इस लेक्चर को देखो या अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको एक दो बार देखो, उनको एक दो बार रीड करो, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन पर क्या बोला था, देखो एक मिनट, इसको सब इंक को मैं रिमूव कर दूँ। चलो देखिए, क्वेश्चन में बोला, देखो चेंजेस हमें किस में करना है, देखिए जिस ईयर में के प्रॉफिट में से ये लॉस माइनस की गई है उसी में हमें चेंजेस करना है। तो देखो 16-17 के प्रॉफिट में से माइनस की गई थी, तो 16-17 का प्रॉफिट जो है हम 25,000 रुपये से, यानी कि 25,000 से बढ़ा देंगे, तो हमारा न्यू प्रॉफिट निकल आएगा 17 का 1,25,000 का, ठीक है। तो अब हम जो है 17 में जो है 1,25,000 का यूज़ करेंगे, ना कि 1,00,000 रुपये का, ठीक है। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस अगर कोई चार्ज कर ली गई है वो हमेशा प्रॉफिट में ऐड कर दी जाती है। आसान भाषा में इतना समझ लो, अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट से, एबनॉर्मल लॉस बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट से चार्ज कर ली गई है तो वो एबनॉर्मल लॉस उस ईयर के प्रॉफिट में दोबारा से जोड़ दी जाती है गुडविल को कैलकुलेट करते समय, ठीक है। आई होप अब आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो अब जल्दी से हम यूज़ करेंगे प्रॉफिट का। देखो 16 में हम इस प्रॉफिट का यूज़ करेंगे, लेकिन 17 में इस वाले का यूज़ करेंगे। बाकी 18 में कोई चेंजेस हुआ नहीं, यही यूज़ होगा। 19 में कोई चेंजेस हुआ नहीं है, 20 में कोई यूज़ हुआ नहीं है। तो जल्दी से अब हम निकाल लेते हैं गुडविल अपनी, एवरेज प्रॉफिट सॉरी निकाल लेते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला तो हमें पता है, देखिए मैंने यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला भी है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। हाँ इसे ध्यान रखना, कभी भी अगर आपका एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में दी हुई है तो वैसी कंडीशन में हमें सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एडजस्टेड प्रॉफिट वो होता है यानी कि जो नया प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है।
तो देखो जो पहले ईयर का प्रॉफिट है उसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं है। दूसरे ईयर वाले में हमने क्या किया, 25,000 जोड़े हैं ना, ये 25,000 जोड़े हैं, तो उसमें ये हम इस तरह से ऐड कर देंगे। थर्ड ईयर के प्रॉफिट में कोई चेंज हुआ नहीं है। फोर्थ ईयर में जो लॉस दे रखी थी, मतलब ब्रैकेट में मतलब लॉस, इसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं, ऐसे लिख दिया हमने। और फिफ्थ ईयर वाले प्रॉफिट में कोई चेंज हुआ नहीं, ऐसे ही लिख दिया। तो ओवरऑल इन सबको अगर सम करोगे, पहले सारे प्लस वाले जोड़ लो, बाद में से जो भी प्लस वालों का सम जो भी है उसमें ये लॉस माइनस कर दी जाएगी। इस लॉस को माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा ये फाइनली 5 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आपका कितना निकला है, ये वाला 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख अपॉन में कितना, नंबर ऑफ ईयर 5, क्योंकि कितने साल का प्रॉफिट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, 5 साल का प्रॉफिट है ना हमारे पास, तो अपॉन में नंबर ऑफ 5। तो इस तरह से 1 लाख रुपए का आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। चलिए, अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हमें पता है हम क्या करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। गुडविल का फार्मूला भी हमें पता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाला जस्ट 1 लाख रुपए का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में दी हुई थी। आई होप आप सभी ने नोट किया होगा, क्वेश्चन में जल्दी से देखो। चलो मैं दिखा भी रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा देखिए उसने क्या बोला था, देखो यहाँ पर देखो, कह रहा है गुडविल ऑफ ए फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑफ द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। देखो उसने यहाँ पर क्लियर मेंशन किया ना, 3 ईयर्स परचेज। ये ऊपर देखो क्वेश्चन में 3 ईयर परचेज पर हमें 3 ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो यही हम गुडविल को यूज़ कर कैलकुलेट करते समय यूज़ करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 3 हो जाएगा ना, ये तो दे रखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो वो 3 का है। तो 1 लाख इंटू 3 करेंगे तो हमारा इस तरह से 3 लाख रुपये का ओवरऑल गुडविल निकल आएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। एंड चलिए अब सेशन को स्टार्ट क्लोज करने से पहले, एंड करने से पहले जल्दी से कुछ बात कर लें एक बार फिर से। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप में से जो भी बच्चा हमें ज्वाइन करना चाहता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, या हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर परचेज करना चाहता है, तो हमें कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पर। कांटेक्ट नंबर मैं दोबारा से नीचे लिख दे रहा हूँ, जिससे कि अगर वो विजिबल ना हो तो आप लोग यहाँ पर देख लें। 1 मिनट, कांटेक्ट नंबर हमारा है, वेट, ये सब रिमूव कर दूँ मैं, हाँ। कांटेक्ट नंबर है हमारा 9151369837। मैं बोल रहा हूँ, अगर इसमें विजिबल ना हो तो आप इसको नोट कर सकते हो। वेट, 9837, ये आपका 7 है, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। ये इस नंबर पर आप अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 7390879380। इस नंबर पर आप अपनी क्वेरीज हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है रिपब्लिक अकेडमी, REPUV, ये सब स्मॉल लेटर्स में है, रिपब्लिक अकेडमी 209@gmail.com। अगर आप लोगों को स्पेलिंग क्लियर ना हो तो मैं बोल दूँ, REPUVLICACADEMY, रिपब्लिक अकेडमी 209@gmail.com। आप अपनी क्वेरीज हमें इस ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द गाइज। इफ़ यू हैव रियली enjoyed the session, so guys please hit the thumbs up icon below, and even I would like to remind you that if you have not subscribed this channel till the time, so just hit the red icon below so that you can get all the notification of the upcoming videos on this channel, and that will help you to keep yourself updated, and that will help you to do not miss any of these classes uploaded on this channel. So that is going to be very helpful to all of you. So that's why I would like to request, and I would like to remind to you all that if please subscribe this channel. Okay, so that's all for the day guys. We'll see you tomorrow. We'll see you again in the next lecture tomorrow. So till then, take care, bye bye. Thanks to all of you.